Hello everyone, welcome back to EVS class. So how are you all? I hope you are all doing well at your home. So welcome to EVS class. So we have completed chapter. So today we are going to do exercises in textbook. Okay, so open your textbook, page number 78. Okay, so we learned about things around us. Okay, there are many things around us, है ना. So some are natural things and some are man-made things like air, water, plants, animals, soil, rock. These are all called natural things. Okay, these are not man-made things. Okay, so man-made things किसे कहते हैं? Made by man. Things made by man are called man-made things. And not found in natural. जो man-made रहता है वो natural नहीं रहता है. Clear? So today we are going to do exercises. Okay. So first fill up all living things are blank. So our options are natural or man-made. So all living things are natural, not man-made. Okay, so all living things are why natural? Because living things can grow, can breathe, can move. Means हम हैं humans, birds, animals, insects. These are all living things. So this is not man-made things. Okay, these are called natural things. Clear? So यहाँ पे आप टिक करेंगे. Second one is blank things can be either natural or man-made. Okay, so your answer is non-living thing because non-living things can be either natural or man-made. Okay, so third one is blank R is used to make objects such as ornaments and machines. So I have already explained about materials. There are 4 materials in our chapter: wood, metal, rubber and plastic. Okay, so here 2 options, metals and wood. So we have to write metals because metal is used to make ornaments, machines, utensils, etc. Okay, so next move to 4th one. Blank is used to make objects such as bottles and buckets. Okay, so this is also material. We have 2 options, rubber and plastic. So we have to write here plastic. Okay, so now last one is cotton, silk and wool are blank materials. मैंने ऑलरेडी आपको समझाई थी. We get cloths from also natural. Okay, so natural like cotton. We get cotton from cotton plants. So cotton plant is natural living thing. Silk, we get silk from silkworm. So silkworm is also living thing and natural living thing. And wool, we get wool from sheep. So sheep is animal, so animal is natural living thing. Okay, so we have to write here natural materials. Okay, so next move to match the following. So sorry, give 2 examples for the following. Okay, यहाँ पे मैचिंग नहीं है इस बार. Okay, so first one is natural and living things. यहाँ पे 2 options लिखना है हमें. ओके, वो नेचुरल भी होना चाहिए और लिविंग थिंग्स भी होना चाहिए, है ना. लिविंग थिंग्स मैंने डेफिनेशन समझाई थी ना. बिकॉज लिविंग थिंग कैन ग्रो, कैन रिप्रोड्यूस, कैन मूव एंड नीड फूड एंड वाटर. ओके, सो नेचुरल लिविंग थिंग्स में हम क्या लिखेंगे? प्लांट्स, एनिमल्स. ओके, सो यहाँ पे आप और भी लिख सकते हो. ओके, लाइक बर्ड्स लिख सकते हैं, ह्यूमंस लिख सकते हैं. ओके, सो आई हैव रिटन plants and animals. Next move to second one, natural and non-living things. मतलब यहाँ ऊपर क्या था? नेचुरल रहना चाहिए और लिविंग थिंग होना चाहिए. यहाँ पे है नेचुरल एंड नॉन लिविंग थिंग. सो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स मैंने समझाए थे आपको. वाटर, एयर, सॉइल, ओके, and rock. These are all called natural non-living things. So I have written here water, air. Okay,
सो थर्ड वन, मैन मेड थिंग्स। हमें मैन मेड थिंग्स में लिखना है एग्जाम्पल्स। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन मैन मेड थिंग्स। ओके, सो आई हैव रिटन बुक्स एंड टेबल। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो। ओके, टॉयज लिख सकते हो, ये टीवी लिख सकते हो, कंप्यूटर लिख सकते हो। ओके, दीज आर ऑल मैन मेड थिंग्स, ऑल्सो कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो मैन मेड थिंग्स ऑलवेज नॉन लिविंग ही थिंग रहता है, इतना आप याद रखिए। ओके, मैन मेड थिंग जो रहता है वो नॉन लिविंग ही रहता है, उसमें जान नहीं रहती है, लिविंग थिंग नहीं रहती है वो। ओके, लिविंग थिंग सिर्फ नेचुरल में रहता है। ओके, मैन मेड में नहीं रहता है। सो अवर फोर्थ वन इज थिंग्स मेड ऑफ वुड। ओके, तो हमें यहाँ पे वुड से बना हुआ थिंग्स लिखना है। लाइक मैंने चेयर और पेंसिल लिखा है, पेंसिल आप देख रहे हो, दिस इज मेड ऑफ वुड। ओके, सो आप यहाँ पे टेबल भी लिख सकते हो, कबर्ड भी लिख सकते हो। ओके, सो चॉइस इज योर्स। एंड द फिफ्थ वन इज थिंग्स मेड ऑफ रबर। ओके, तो हमें रबर से कौन सी चीज बनाते हैं हम लोग? टायर्स एंड ग्लव्स। टायर्स लिखा है मैंने और ग्लव्स लिखा है। ओके, तो रबर से इरेजर भी बनता है ना। मैंने एग्जांपल्स बहुत दिए हैं, तो टायर्स और ग्लव्स हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव टू एक्सरसाइज सी, नेम द फॉलोइंग। ओके, सो फर्स्ट वन, थिंग्स फाउंड इन नेचर। तो हम उसके क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स। ओके, जो थिंग्स हमें नेचर के थ्रू मिलता है उसे हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स नहीं बोलते हैं। ओके, सो वी हैव टू राइट हियर नेचुरल। Second one, things made by man, not found in nature. So, this is called man-made things. Okay? क्या है? Things made by man, not found in nature. मतलब ये नेचर में नहीं मिलता है, सिर्फ हम ह्यूमंस ने बनाया, इसीलिए हम man-made things बोलते हैं। Okay? So next, natural things that grow and multiply on their own. It's called living things. ओके, सो लिविंग थिंग्स का डेफिनेशन क्या है? थिंग्स दैट ग्रो, दैट मल्टीप्लाई एंड दे नीड फूड एंड वाटर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लिविंग थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट आती है थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम। तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग। ओके, बिकॉज नॉन लिविंग डू नॉट हैव लाइफ इन देम. Okay, that's why we call them non-living thing. Okay, because non-living things cannot grow, cannot move, and does not need food and water. That's why we call it non-living things. Okay, so next move to choose the correct option. Okay, so here which of these is not true about non-living things? यहाँ क्या बताया गया है? 4 ऑप्शंस दिया है, उसमें कौन सा ट्रू नहीं है नॉन लिविंग थिंग में। ओके, सो योर ऑप्शंस आर, दे आर ऑल नेचुरल, दे आर ऑल मैन मेड, दे कैन रिप्रोड्यूस, ऑल ऑफ दिस। ओके, हमें क्या लिखना है? विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब नॉन लिविंग के बारे में वो ट्रू नहीं है, सही नहीं है, उसको हमें लिखना है। ओके, सो आवर ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। Okay, so second one is, what would you call things that do not have life in them? ये आपको पता है, जिस थिंग्स में लाइफ नहीं रहती है, दे कैनॉट ग्रो, दे कैनॉट मूव, उसको हम क्या कहते हैं? यस, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ओके, सो आवर ऑप्शंस आर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स एंड नन ऑफ दिस. So your answer is non-living thing. Okay, so next move to third one, which of these can living things do? मतलब living things को हम कैसे identify करते हैं? There are 4 options, they grow, they breathe, they reproduce, all of these. So ये क्या है? सब सही है। Okay, because living things grow, living things breathe and living things reproduce. So we have to choose this answer, all of these. Okay, so next move to which of these materials would you use to make tables and pencils?
यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि किस मटेरियल से बना है. ओके, सो योर ऑप्शंस आर रबर, वुड, मेटल, प्लास्टिक. सो वी हैव टू राइट हियर रबर. ओके, सो रबर, there are 4 options: rubber, wood, metal, plastic. so टेबल और पेंसिल किससे बनते हैं? रबर से? नो. मेटल से? नो. प्लास्टिक से? नो. सो वी हैव टू चूज दिस आंसर, वुड. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन इज विच ऑफ दीज थिंग्स कैन बी मेड यूजिंग मेटल्स? Your options are utensils and jewelry, erasers and gloves, bags and jackets, ropes and combs. So our answer is utensils and jewelry. ये मेटल से बनाया गया है ना. utensils, jewelry means ornaments. Okay, so next, which of these is made of plastic? हमें प्लास्टिक के कौन से चीज बना है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो ऑप्शंस आर बल्ब, wall, bottle and carpet. So our answer is bottle, because प्लास्टिक से बॉटल बनाया जाता है, कारपेट, वॉल, बल्ब नहीं. ओके, तो नेक्स्ट मूव टू लेट्स रिकॉल. ओके, सो ये हमें रिकॉल हम करते हैं ना, पहले भी मैं करवाती थी. ओके, सो फर्स्ट वन यहाँ पे नेचुरल लिखना है. ओके, तो थिंग्स अराउंड अस, इसके बारे में हम पूरा चैप्टर एक ही मैप में हम लिख रहे हैं आज, है ना. तो यही एक है लेट्स रिकॉल करने का, कि पूरा होल चैप्टर इस मैप में आ जाता है. ओके, सो थिंग्स अराउंड अस, नेचुरल, मैन मेड एंड वी गेट मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल. ओके, यहाँ पे 3 लिखना है. वन इज नेचुरल, मैन मेड, मटेरियल्स. ओके, आप मेरे साथ करोगे तो ही आपको आएगा, अदरवाइज पीडीएफ में ये दिखाई नहीं देंगे अक्षर. ओके, so I made this big screen. So see, natural things. Natural things में कौन से हैं? वन इज लिविंग एंड वन इज नॉन लिविंग. आपको ये मैप समझ में आ गया तो पूरे चैप्टर आपको समझ में आएगा. ओके, सो नेचुरल में सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग. सो विच आर दे एग्जाम्पल्स? लिविंग थिंग्स में ह्यूमन्स, बर्ड्स. ये ही लिखना है ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप प्लांट्स भी लिख सकते हो, ह्यूमंस की जगह इंसेक्ट्स भी लिख सकते हो. क्लियर? बिकॉज दीज आर ऑल लिविंग थिंग्स. सो नॉन लिविंग थिंग. ओके, नॉन लिविंग थिंग में क्या आता है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. ओके, सो मैन मेड रॉक और वाटर मैन ने नहीं बनाया. मैंने बोला था मैन मेड थिंग नॉन लिविंग ही रहता है, बट ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है. क्लियर? यहाँ पे देखिए मैप, नेचुरल, non-living things, rocks and water. Okay, so next move to things around us. Okay, things around us. यहाँ पे है man-made. man-made में क्या आता है? man-made में सिर्फ non-living आता है, living things नहीं आते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल्स, बस, बुक. एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे लिख सकते हो, लाइक कार, बाइक, कंप्यूटर. दीज आर ऑल non-living things, also called man-made things. Okay, अब बारी आती है materials. Okay, materials का example लिखना है हमें. So I have written plastic and metal. आप यहाँ पे इसकी जगह wood भी लिख सकते हो. Okay, so rubber भी लिख सकते हो, है ना. 4 materials है, तो choice is yours. Next move to page number 80. In textbook there are very easy exercises. Okay, so name 2 materials used to make the things shown in the picture alongside. ओके, ये देखा है आपने, ये अनस्क्रैम्बल वर्ड्स है. यहाँ पे देखिए अनस्क्रैम्बल वर्ड्स है, हमें उसको सीधा करना है. TELAM, it becomes metal. Okay, second one DOWO, this is very easy, it becomes wood. So it becomes wood. Okay, second exercise, look at the picture of Abhijit's neighborhood below and answer the question that follow. Okay, so ये exercise
ये जो ऊपर का एक्सरसाइज था ये हमने ये बोल के हमें करना था। ओके, सो नेक्स्ट आती है ये पिक्चर देखिए पूरा, ये किसका गार्डन है? अभिजीत का नेबरहुड गार्डन है। ओके, अभिजीत एक लड़का है, उसका नेबरहुड में एक गार्डन है। तो इस गार्डन को अब मैं क्यों दिखा रही हूँ, अभी इसके बारे में हमें लिखना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आ गया, नेम 6 नेचुरल लिविंग थिंग्स। ओके, इस गार्डन में देखिए, इस गार्डन में नेचुरल लिविंग थिंग्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आपको? कैट, डॉग, ट्रीज, प्लांट्स, flowers, squirrel, these are all natural living things. Okay, so मैंने लिखा है देखिए, plants, dog, flowers, cat, squirrel, grass also, क्योंकि grass भी grow करता है, तो grass ये this is natural लिविंग थिंग्स। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है? विच ऑब्जेक्ट्स सीन हेयर आर मेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ओके, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स है, वस्तु है। यहाँ पे ग्लव्स दिख रहा है आपको, ग्लव्स, वूलन दिख रहा है, यहाँ पे बुक्स दिख रहा है और बेंच दिख रहे हैं। तो ये नेचुरल मटेरियल से लेके हमने बनाया है। विच ऑब्जेक्ट सीन हियर आर मेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ओके, सो मैं समझाती हूँ। ये बेंच बना है किससे? ट्री के वुड से। ओके, सो ट्री इज नेचुरल लिविंग थिंग्स, सो वी गेट वुड फ्रॉम ट्री एंड वी मेड इट इन बेंच। ओके, तो वुड हमने लेके हमने बेंच बनाया। नेक्स्ट ग्लव्स। ओके, वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री। ओके, रबर ट्री इज ऑल्सो नेचुरल लिविंग थिंग, सो उससे हमने बनाया नॉन लिविंग थिंग लाइक ग्लव्स। ओके, वूल की बारी आती है, दिस इज वूल जो कैट पकड़ा है। ओके, सो वी गेट वूल फ्रॉम sheep. ओके, तो sheep इज नेचुरल लिविंग थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू लेट्स कनेक्ट। ओके, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो। ओके, सी हियर। तो यहाँ पे लेट्स कनेक्ट में क्या है? Anagrams are formed by changing how letters are placed in a word. For example, यहाँ पे उल्टा शब्द दिया गया है, सीधा शब्द देते हैं तो हमें उल्टा बनाया है उन्होंने। ये देखिए, ANT, ant becomes tan, ये उल्टा है, मतलब जैसे हम अनस्क्रैम्बल वर्ड्स लिखते हैं ना, वैसे ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एपे becomes pea, bear becomes bear. Okay, so now make your own anagrams for any 5 animals and plants and ask your friends to guess their names. Okay, this is interesting game. Okay, जब भी ये हम या ऑनलाइन में रहेंगे ये गेम खेलेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, EEB, it becomes bee, honey bee. ओके, TAC, ये क्या बनता है? कैट। ओके, नेक्स्ट चेक करेंगे, GOD, तो इससे क्या बना हमारा जो पिक्चर में दिख रहा है? डॉग। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ वन, LLBA, सो इट बिकम्स बॉल। and last one is EERT, it becomes tree. Tree is here. Clear? ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम, हम FCC में ये जरूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट आती है लेट्स अप्लाई। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। इज सॉइल लिविंग और नॉन लिविंग? सी, प्लांट्स, जैसे प्लांट्स को हमने लिविंग थिंग बोला है ना, नेचुरल लिविंग थिंग्स बोले, बट वो पूछे गए हैं तो सॉइल से प्लांट्स उगती है, तो सॉइल इज लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स? सो आवर आंसर इज नो, सॉइल डज नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस, इट डज नॉट ब्रीथ और नीड फूड, देयरफॉर सॉइल इज नॉन लिविंग। क्लियर? वेरी सिंपल आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स एनालाइज एंड इवैल्यूएट। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, इसके बारे में हमें लिखना है। क्लियर? ओके, सो विच ऑफ दीज वुड यू चूज टू मेक द थिंग शोन हियर?
ओके, ये आपको क्या दिख रहा है, ये बॉटल की तरह दिख रहा है ना। तो ऑप्शंस आर पेपर, प्लास्टिक, वुड या सैंड। तो बॉटल किससे बना है, प्लास्टिक से। ओके, प्लास्टिक इज मटेरियल, प्लास्टिक इज यूज टू मेक comb, bottle, bucket, mugs, etc. Okay, so next move to give one reason for your choice. Okay, so give one reason for your choice, मतलब ये रीजन बताना है हमें क्यों हम प्लास्टिक का बनाते हैं। क्या हम सैंड से नहीं बना सकते, क्या हम वुड से नहीं बना सकते बॉटल, क्यों नहीं बना सकते। ओके, सो plastic is hard and will not let water seep through. That's why we make. Okay, this is answer. Plastic is hard and will not let water seep through. अगर हम सैंड से बनाएंगे, मिट्टी से बनाएंगे वाटर बॉटल, तो वाटर अपने आप लीक होके चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए प्लास्टिक हार्ड रहता है। दैट्स वाई वी मेक बॉटल्स विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉटल अ नेचुरल और मैन मेड। ये बॉटल जो है ये मैन मेड है या नेचुरल है, मैन मेड थिंग है। ओके, नेचुरल कैसे लिया, हमने नेचुरल मटेरियल से लिया है, लेकिन प्लास्टिक इज नॉट लिविंग थिंग, प्लास्टिक मटेरियल इज नॉन लिविंग थिंग। ओके, सो मैन मेड थिंग है ये हम ह्यूमंस ने बनाया है बॉटल्स। क्लियर, सो आवर एक्सरसाइजेस आर कंप्लीटेड इन टेक्स्ट बुक। ओके, दिस इज नॉट हेवी होमवर्क। ओके, सो प्लीज डू दिस होमवर्क। ओके, बिकॉज हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। तो 2 वीडियो में मैंने चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, सो ये एक्सरसाइजेस आप कंप्लीट कीजिए। ओके, सो बी सेफ, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।